Three of our toppers. We'll start with Vipin Garg, followed by Annapurna, and then finally with Jasmeet, suppose. So Vipin is a doctor. He's from AIMS. This was his third attempt, and he secured the 20th rank this year. And he will be, among other things, talking about PT and also on the interview because he has consistently cleared PT exams. Also, I believe, he scored the highest in the interview. So I hope you will enjoy the session, and I will, without taking any further time, ask Vipin to join us for the session. Please, a round of applause for Vipin. He has traveled all the way from Jaipur to be with us here, and I'm really thankful for that. Thank you, ma'am, for such a nice introduction. Okay, so I'll tell briefly about myself. So my optional was medical science. This was my third attempt, third interview. In prelims, I got 142 marks in general studies and 182 or 183 in CSET. In interview, I scored 209 marks. So I'll be mainly talking about prelims and interview. So this is gonna be an interactive session. I am not gonna give you any lecture. So we are gonna talk about how to prepare, what mistakes I made, what mistakes you should avoid, and what worked for me and what can work for you. And let's hope we can, I can contribute something in your success. So in the prelims, okay, first, how many of you have taken at least one prelims? Okay, so many of you haven't taken any prelims. How many of you have cleared prelims at least once? Okay, so most of the people are freshers. Okay, so for prelims, there are two papers everyone knows, general studies and CSET. The first thing is that you should solve all the 4 or 5 CSET papers and make sure that you get at least 90 marks. If you get less than 90 marks, work on your CSET, because if you do not get 66 marks in the prelims examination in CSET, all the hard work you do in general studies is gonna fail. So make sure you get at least 90 marks. So 24 marks question, because paper might get very tough this year or next year, or we don't know about that. So that is. Then the general studies is the only scoring paper. Marks will be added of only of general studies. So for general studies, you need to score maximum marks, right? Because we don't know the cutoff. This year cutoff was 107, next year it could be 120, it could be 80 also. Okay, so when you go into the examination hall, don't go with any preconceived notion. Okay, so people generally ask me, how many questions should one attempt? So can anyone tell how many questions should one attempt? In prelims paper, how many questions should one attempt? All 100, 50, 70, 90? Any guesses? At least 85. Okay, anyone else? What if you know only 50 questions? Then also you will attempt 85? So but how do you know you would be confident about 85 questions? Okay, so the thing is, you should attempt as much as you know. If you know all the 100 questions, attempt 100 questions. Do not stop at 85, because cutoff might be 170. You never know, right? The paper might be very easy. Who is the President of India? Who is the Prime Minister of India? Right? And paper might be very tough. You might know only 40 questions. I won't say stop at 40, but attempt first those 40 questions. So the first thing is, don't go in the examination hall with any preconceived notion that this is going to be cut off, this many questions I should or I must attempt. Okay, so your aim is to maximize your score in prelims. If you get 20 more marks than cut off, it won't harm you, right? ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बोल देगा कि भाई 20 मार्क्स ज़्यादा हैं तो मेंस लिखने को नहीं दिया जाएगा, right? So this is the first thing. The second thing is that negative marking. People say, okay, there is 1/4 negative marking. So if you attempt 4 questions, 1 is going to be correct, right? 1/3 negative marking, sorry. So if you attempt 4 questions, 1 is going to be correct, right? Okay, so this is 1/3 negative marking, right? So, and there are 4 options. So there is probability of 1 question getting correct out of 4. So people think that if you attempt 4 questions randomly, 1 will be correct, so your score will even out, you will get 0 marks, right? But this does not happen, you know. The probability applies in large numbers. There's probably in every question you attempt randomly, there's probability of 3/4 getting wrong. So even if you attempt 4 questions, this is the probability of you getting all 4 questions wrong, right?
and this is not 0, this is about 30%. You can do it for your CSAT, okay, you can calculate it for your CSAT. So first thing is, do not mark randomly, but in prelims, if you are prepared well, you are well prepared, what would happen in most of the questions, you would know something about the question. You would not mark randomly, you would know something, so you think, okay, this option is incorrect, this option is correct. So in prelims, the elimination method works. So, but you have to learn that. So eliminate the options, right? So if the question comes, which country is not there in NAFTA? Okay, so many of you might not know how many countries are there in NAFTA, right? North Atlantic Free Trade, North American Free Trade Area, right? But if the options are, say, USA, Canada, Mexico, Brazil. Okay, question is, which of the countries is not there in NAFTA? So the very conservative, okay, I don't know anything about NAFTA, I will not solve this question. But if you know it's North American Free Trade Area and you know that Brazil is not in North America, you can reasonably be sure that most probably Brazil would be the right answer. It could be incorrect because you are not 100% sure, but you would not be 100% sure in at least 30-40 questions. I wasn't, right? So, but this way you can make informed guesses, and this is very important. But you would be able to make informed guesses only when you prepare well. Not only you have to prepare well, like read your standard books, notes provided by various coaching institutes, whichever you study in current affairs, but apart from that, this elimination method and the statistic develops when you solve question papers. So you join various test series, right? So in test series, what we normally do, okay, we solve a test paper, come back home, evaluate our answers. मार्क्स ओके 120 नंबर आ गए, बड़े खुश हो गए, चलो भाई पार्टी करते हैं आज. 80 मार्क्स आ गए तो दोस्त से पूछने लगेंगे कितने मार्क्स हैं, उसके 70 हैं तो चलो खुश हो जाते हैं. तो खुश नहीं होना है क्योंकि 80 मार्क्स तुम्हारे हैं, 70 मार्क्स दोस्त के हैं, तो दोनों फेल हो गए. ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग जुबिलेंट, ओके माई फ्रेंड इज डूइंग वर्स देन मी. ओके, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो क्वेश्चन गलत किए हैं तुमने, तुमको उनको एनालाइज करना होगा, व्हाट मिस्टेक्स वी मेक. And when you will analyze all such mistakes test after test, you will know there is a pattern in your mistakes. When you realize that pattern, you would be able to, जो आपका thought process है वो थोड़ा improve हो जाएगा. तो then you would be able to make more such informed guesses. But for informed guesses, it's important you prepare well, you solve question papers, various question papers. Okay, then the things come, okay, this was about how to approach the paper, but it's important that we study hard, okay, and study smart, because everything and anything under the sun is UPSC syllabus. Anything can be asked, but obviously we cannot read everything. So people say, okay, ecology, 20 questions, 25 questions, but you have to realize that there are some areas like ecology, culture, many questions are asked, but not all questions are doable. Like question on endangered species, there are thousands of endangered species. Then there are plants, you cannot remember all of them, but okay, this one question was asked and you start to learn the whole red data book of IUCN or WWF, whoever publishes it, by heart. And what if there is no question in examination? It would be worthless, right? Plus there is no written on remembering red data book in mains examination or even in interview. So what you should do about these questions is, whatever comes in newspaper or what in your test papers, you should remember that. अगर लक होगा तो भिड़ जाएगा एक तुक्का, ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो. 100 के 100 क्वेश्चन तो करेक्ट नहीं करने होते ना, 90 क्वेश्चन करेक्ट तो कोई भी नहीं कर पाता. तो ऐसी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो. बट करने क्या लगते हैं लोग, आर्ट एंड कल्चर में 15 किताबें खरीद लाएंगे और पूरी PhD कर लेंगे, फिर भी UPSC का सवाल तो गलत हो जाएगा, और फिर इकोनॉमी में रिपो रेट का सवाल गलत कर देंगे. ठीक है ना. तो भाई रिपो रेट वाला सवाल और आर्ट और कल्चर में द क्वेश्चन विच ओनली यू करेक्टेड, बोथ हैव इक्वल मार्क्स. तब ये तो बोलोगे नहीं ना मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया लेकिन आर्ट एंड कल्चर का टॉपर हूँ. ठीक है, तो प्रीलिम्स में ध्यान रखना होता है कि किस टॉपिक पे कितना टाइम दे रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है कि इकोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर पर डिस्प्रपोर्शनेट टाइम जाता है हमारा. लगता भी ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं,
बट ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट डूएबल, जबकि इकोनॉमी, पॉलिटी, modern Indian history, and most of the geography plus most of the current affairs, they are all doable questions. You can solve every single one of that and correctly. ठीक है, तो अगर ये 50 क्वेश्चन ही सही कर दोगे तो ये कट ऑफ पार हो जाएगी. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर एंड इकोलॉजी, इस पर टाइम देना है बट नॉट डिस्प्रपोर्शनेट टाइम, जो एकदम बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत बेकार फैक्ट्स, उनको लर्न करने की जरूरत नहीं. जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और इनकी सारे डांस की 8 स्टेप्स और 15 स्टेप्स ये सारी याद कर ली, तो उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला नहीं एग्जाम में. तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड इग्नोर देम, बट यू शुड प्रायोरिटाइज एवरीथिंग. ठीक है, अभी लक्ष्मीकांत याद नहीं है तुमको, और भरतनाट्यम की 15 स्टेप्स या 8 स्टेप्स जितनी भी होती हैं और कुचिपुड़ी की भी, वो सब लर्न करने लग रहे हो, तो उसका तो बेसिकली योर प्रायोरिटी इज़ रॉन्ग, क्योंकि लक्ष्मीकांत से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं. दोज क्वेश्चन आर ईजी, एवरी वन इज़ गोना करेक्ट देम, बट इफ़ यू डू नॉट रिवाइज दैट, आपके गलत हो जाएंगे. तो योर प्रायोरिटी शुड बी कि भाई कितना, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में भी या आर्ट एंड कल्चर में भी, तो भाई बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो तो सही होने चाहिए. 50% क्वेश्चन तो उन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे. और फिर नेशनल पार्क्स कर लिए, जियोग्राफी में देख लिया. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज बेसिक बुक्स, आपको यू शुड नो वट एवर इज रिटन इन बेसिक बुक्स बाय हार्ट. सो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई, या विच एवर बुक यू रीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, विच एवर बुक यू रीड फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस, हाँ, जियोग्राफीज की NCERTs, हाँ, इकोनॉमी की एटलीस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, जो NCERT में लिखा हुआ है, रिपो, रिवर्स रिपो, CRR, SLR, ये वाले सवाल बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए. जो करंट अफेयर से बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे कई लोगों को लास्ट ईयर वो क्वेश्चन आया था, क्या ब्रिक्स समिट वाला क्वेश्चन, कौन सा, फोर्टालीजा डिक्लेरेशन आई थी, बहुत लोगों को वही नहीं आया. अब तुम फोर्टालीजा डिक्लेरेशन गलत कर दे रहे हो और कोई खतरनाक सा क्वेश्चन सही कर दिया मान लो. ठीक है, तो अब फोर्टालीजा डिक्लेरेशन तो एक बार अगर करंट अफेयर विजन जो भी देता है या कोई भी इंस्टीट्यूट देता है, एक बार इफ़ यू हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला. तो लेकिन अब आर्ट एंड कल्चर को करने के चक्कर में फोर्टालीजा डिक्लेरेशन को गलत नहीं कर सकते हैं, राइट. तो प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आई वुड सजेस्ट दैट सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, व्हेन यू एनालाइज दैट, तो एक हैबिट डेवलप होती है और एक इंस्टिंक्ट आती है अंदर से, ओके दिस, इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में कुछ फिशी लग रहा है, दिस कुड बी इनकरेक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इनकरेक्ट होगा, बट यू वुड स्टॉप टू थिंक ओके दिस कुड बी इनकरेक्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ इनकरेक्ट. तो अगर आपको ये हैबिट डेवलप होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे. जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, बट फिर भी ठीक हो गया था. जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. यह ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था. अब सपोज यू डोंट नो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंडर होती है, राइट. तो जिसको नहीं पता वो छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, जो कंजर्वेटिव लोग होंगे, राइट, जिनको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा डर है. बट अगर आप सोचेंगे इसके बारे में, तो जब भी GM क्रॉप्स की बात चलती है तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बीच में आ जाती है, राइट. यू नो GM ब्रिंजल, BT ब्रिंजल हो गया, BT कॉटन हो गया, या अभी BT मस्टर्ड को वो दे रहे थे, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बीच में आ जाती है. तो अब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बीच में आ जाती है तो देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का है नहीं. जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अगेन, तो अब ऑप्शन बचता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इन दोनों में से कुछ आंसर होगा. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिर्फ वाइल्ड लाइफ को तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, प्लांट भी है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईजिली आंसर हो जाएगा. तो बट ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो ये ऑप्शन आपको क्लिक नहीं करेगा. बट अगर आपने ऐसे 50 पेपर सॉल्व कर रखे हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, लास्ट 10 ईयर के पेपर, जो भी टेस्ट सीरीज जो भी आपने अटेंड कर रखी है वो, तो ये आपको अपने आप अंदर से आएगा, यार ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप ये लगा दोगे. जैसे ये मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, कौन सी कंट्री नहीं है. अब नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अगर आपको पता है मैकोंग कहाँ पर है, गंगा कहाँ पर है,
अब चाइना में तो ना मैकोंग है ना गंगा है, या ऐसा कुछ करोगे तो आपको आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे ये है, इन ए पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रॉबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स। एज द टाइम पासेस दीज ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, दीज यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड इन। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं थोड़ा, तो आपको पता रहेगा कि मेघालय में ऐसा कुछ कुछ होता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये कुछ होता है, लेकिन आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में तो नहीं हो रहा है, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो रहा था, तो यू वुड बी एबल टू आंसर मेघालय। लेकिन इसके लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है। मेघालय ध्यान नहीं आ रहा, मणिपुर आ रहा है, मिजोरम आ रहा है, लेकिन आपको इफ़ यू नो दिस इज इन नॉर्थ ईस्ट तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स इज कि आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप इन्फॉर्म्ड गैसेस मार सकते हैं, ओके। बट इन्फॉर्म्ड, लेकिन एग्जामिनेशन में डर लगेगा कि यार गलत हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप घर पे सॉल्व करते हैं पेपर्स, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो जहाँ पर भी इन्फॉर्म्ड गैसेस मारें, टिक लगा लो इन क्वेश्चंस को, ओके। इतने क्वेश्चन में गैस लगाया मैंने, इन्फॉर्म्ड गैस, तुक्का नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेट करो कितने मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं। मेरे तो हमेशा बहुत पॉजिटिव ही बने हैं, ज़्यादातर लोगों के पॉजिटिव ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्ट मारोगे तो हो सकता है नेगेटिव भी बने, प्लस कोल्ड फीट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको और बता देते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। तो प्लस जैसे ज्योग्राफी होता है, तो ज्योग्राफी के लिए मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम मैप्स, या बाकी क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी से, ठीक है। जो आप एनसीईआरटी 12th 11th क्लास की जो भी पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं, मानसून का क्या मैकेनिज्म है, और बाकी क्वेश्चंस आते हैं मैप्स से। प्लस एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी जो नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैप्स। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप घर पर मैप तो लगा लें। इंडिया और वर्ल्ड का ज़्यादातर लोगों के होता है, बट जिन्होंने नहीं लगा रखा, मैप मिलता है राजेंद्र नगर में, चिपका लें, ठीक है। और फिर जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, मान लो अभी मोदी जी ईरान गए, चाबहार पोर्ट पर कुछ कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ, तो जाओ और चाबहार पोर्ट लोकेट करो। चाबहार पोर्ट लोकेट कर रहे हो, अगल बगल भी देख लो कि भाई ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, बंदर अब्बास कहाँ पर है, कौन सी स्टेट पास हो रही है। तो दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड। जैसे ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो अब अरब स्प्रिंग चल रही है, रोज रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। अगर आप यू हैड मेड दैट दिस हैबिट ऑफ लोकेटिंग एवरीथिंग विच कम्स इन द न्यूज़पेपर इन द मैप जो आपके घर पे चिपका हुआ है, तो यू कुड इजीली हैव मार्क्ड द जॉर्डन। बहुत लोगों ने गलत मार्क किया इसको, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो लोग बोलेंगे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, भाई कैसे, ये तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए था, लेकिन ये दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए ध्यान रखना है कि आपको मैप में लोकेट कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, अगर इट कुड बी मोर देन हाफ द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर सोचोगे इस क्वेश्चन को, अगर मान लो आपको नहीं ध्यान आ रहा कुछ, तो अगर मोर देन हाफ द साइज बनानी होगी तो रूल बनाने का क्या मतलब है भाई। रूल तो इसलिए बनाया होगा ना ताकि भाई 500 की तुम्हारी यूपी की स्टेट असेंबली है, तो ये नहीं कि विधान परिषद की साइज 1000 कर दिया, क्योंकि भाई इतने नेता हैं, सबको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अगर रूल बनाया होगा तो टू लिमिट द साइज ऑफ, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके साथ जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब भी साइज हमेशा लिमिट की जाती है कि 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन आ गया मोर देन 15% हो सकती है, तो इसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। दिस क्वेश्चन यू कैन लॉजिकली मार्क दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट, ठीक है। तो मतलब लेस देन 1/3 होती है, वैसे कोई बोल रहा है इतनी होती होगी, लेकिन मोर देन 1/3 भी होता तो भी आप इजीली गलत कर सकते थे, क्योंकि पर्पज वुड बी लिमिटिंग द साइज। अब ये क्वेश्चन मान लो नहीं आता, पहले किसी टेस्ट पेपर में आपने किया, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से ऑप्शन बनाए जाते हैं,
और आप इजीली अगर आपको नहीं भी पता तो भी यू कुड मेक ए गैस कि ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। दूसरा ऑप्शन है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो पहला ऑप्शन तो क्लियरली दिख रहा है रॉन्ग है, जिसने भी 3-4 साल की पढ़ी है कि भाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ तो इंक्रीज कर ही नहीं सकता, नहीं 30 साल तक तो लगातार किसी भी चाइना का भी नहीं किया तो किसी भी कंट्री का नहीं कर सकता। तो अगर आपको 5 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट की फिगर्स याद नहीं है देन ऑल्सो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन एज इनकरेक्ट, राइट, ठीक है। और फिर क्या करना होता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं कुछ कि भाई ए भी ऑप्शन लग रहा है बी भी ऑप्शन लग रहा है, या कई बार तो ट्रूली कंट्रोवर्शियल होते हैं, कई बार वी आर कंफ्यूज। तो इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस इट्स अ गुड आइडिया टू मार्क एनी वन ऑफ दैट। तुक्का भी लगा दोगे तो क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है तब सही होने की, ठीक है। तो इट्स अ गुड आइडिया इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, इट्स अ गुड आइडिया टू मार्क एनी ऑफ दैट। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भी कोई भी तुक्का मार दो, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल आपको यूज़ करना है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो इस, और घर पे करके देखो इसको, मेरी बात मत मानो, घर पे करके देखोगे नॉर्मली क्या होता है कि लोग बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग हो गई, जो तुक्का सही हो जाता है वो तो मेरे दिमाग से सही हुआ, जो गलत हो गया वो नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली बहुत सारे तुक्के सही हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज वी वांट टू फील गुड अबाउट आवरसेल्फ कि भाई आई हैव सच अ ग्रेट नॉलेज, तो जो मैंने सही किया वो तो सारा मेरे दिमाग से सही हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के अलावा करने के बाद एनालाइज योर मिस्टेक्स। यू विल रियलाइज देयर इज अ पैटर्न, क्योंकि जो हम सबका थॉट प्रोसेस होता है वो एक डायरेक्शन में गड़बड़ करता है। ये प्रीलिम्स की बता रहा हूँ, मेंस में भी इंपॉर्टेंट होगा। मेंस में भी अगर आप एनालाइज करेंगे अपने आंसर्स को तो यू वुड रियलाइज कि आप सम आस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट जो है वो अपने आंसर्स में मिस करते हैं, बी इट पॉलिटिकल आस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट, एनवायरमेंटल आस्पेक्ट। जो बोलते हैं ना लोग होलिस्टिक आंसर लिखो, तो 1-2 आस्पेक्ट हमारे मिस होते हैं, वो हर क्वेश्चन में वही होगा। ऐसे प्रीलिम्स में जो हमारा जो थॉट चलता है आंसर्स को बनाने का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रॉन्ग होता है। तो एक ही क्वेश्चन को हम बार बार गलत करते हैं। जैसे मैं अपना ही बता दूं, वो अवंती वाला क्वेश्चन आया था, बुद्धा की लाइफ, बुद्धा कौन कौन सी प्लेसेस से एसोसिएटेड हैं, तो मैंने लास्ट ईयर भी गलत किया था, उससे लास्ट ईयर भी गलत किया था, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके नहीं गया। तो मैं गलत कर रहा हूँ, तुम भी गलत कर सकते हो ना, तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हो नहीं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन और मुझे डिस्कस करने थे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भी, किसी उसमें डाउट हो कि कोई लॉजिकली आई एम रॉन्ग, तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। वैसे दे वुड बी ए डेडिकेटेड Q&A सेशन, बट कोई अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं, हाउ मेनी टेस्ट सीरीज डिड आई सॉल्व, बेसिकली क्या था, मेरा 4 जुलाई को रिजल्ट आया था, तो 4 जुलाई तक तो पढ़ाई की नहीं थी, फिर 10 दिन शोक मनाने में गुजरते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट लेकिन मेरी 10 साल से आदत पड़ रही ना सॉल्व करने की, प्री मेडिकल के टाइम, फिर हमारे MBBS में भी क्वेश्चन होते थे, PG की भी बुक सॉल्व कर ली थी, फिर इंटर्नशिप में भी ये पेपर सॉल्व कर लिए थे, तो आदत डेवलप हो गई है। तो अगर आपकी एक बार हैबिट डेवलप हो गई तो उसके बाद इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट यू मस्ट डेवलप अ हैबिट। आपको फील आ जानी चाहिए कि भाई ये गलत कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है। तो मुझे नेशनल इनोवेशन के फाउंडेशन के बारे में कुछ पता नहीं था एग्जाम में। अब बोला NIF इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सही लग रहा है, ठीक है, गलत भी हो सकता है बट मुझे सही लगा, चलो। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था देखो उसमें क्या लिखा है, NIF इज़ एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions। अब देखो कितना एग्जैजरेट कर रहे हैं इसमें, हाईली एडवांस्ड,
तो इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब बहुत सारी टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं कर रहा मैं 5 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आके सॉल्व कर लो, बट टेस्ट पेपर तो प्रीवियस ईयर्स के 20 साल के पेपर होंगे, 10 साल के तो रेलेवेंट होते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे फील आने लग जाती है कि यार ये बकवास कर रहा है इस ऑप्शन में, राइट, हाईली एडवांस, हाईली एडवांस। तो फिर मुझे चमका कि यार कभी पढ़ा था, तो ग्रास रूट लेवल के लिए है, ठीक है। तो मतलब ग्रास रूट को गलत करवाने के लिए देख रहा हूँ कितना एग्जेजरेट कर देते हैं। तो इतना एग्जेजरेट करेंगे, अगर आपने 10 पेपर 20 पेपर सॉल्व कर रखे हैं तो फील आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना सोचे समझे गलत कर दो, बिकॉज दिस ऑप्शन हैज़ बीन हाईली एग्जेजरेटेड, दिस मस्ट बी रॉन्ग, ये नहीं है। बट एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि दिस इज़ अनकन्वेंशनल ऑप्शन, तो दिस कुड बी रॉन्ग, तो थोड़ा सोचने लग जाओ, ठीक है। तो अगर इतना सब कुछ कर लोगे तो प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ निकालने मत बैठ जाना कि पेपर इजी है 120 कट ऑफ जाएगी तो 80 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, है ना। क्योंकि अगर हमको पेपर मुश्किल लगता है तो हो सकता है सिर्फ हमको ही मुश्किल लग रहा हो और लोगों को नहीं लग रहा हो, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो आप 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएं, आपको बहुत ईजी लग गया बट एक्चुअल में पेपर डिफिकल्ट हो, आप पूरे 100 के 100 सॉल्व करा है, पता चले 40 नेगेटिव हो गए, राइट। तो ये प्रीलिम्स के टाइम ध्यान रखना है कि डोंट स्पेकुलेट ऑन कट ऑफ ड्यूरिंग द पेपर इटसेल्फ, घर आके कर लो। फिर प्रीलिम्स के बाद अपने क्वेश्चन को सही करने की कोशिश मत करो। लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है हु प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने सुप्रीम कोर्ट लगाया, किसी ने प्रेसिडेंट लगाया, मैं तो प्रेसिडेंट लगा के आया था, गलत हो गया, ठीक है। अब जिसने प्रेसिडेंट लगा दिया 15 लिंक भेज देगा अपने दोस्त को कि भाई प्रेसिडेंट सही है। अब लिंक भेजने तो सही नहीं हो जाएगा, बस तुम्हारे 2 दिन खराब हो जाएंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रीलिम्स के बाद 2-3 दिन रेस्ट ले लो, बट इन कामों में ना लगो। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ स्पेकुलेट करने लग जाएंगे। 105 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, तो कट ऑफ 104 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। 100 आ रहे हैं तो 99, बाकी जो लोग 120 नंबर बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 2 महीने वेस्ट कर देते हैं, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, पता चले हो गया सिलेक्शन, अब बोलते हो यार 2 महीने वेस्ट हो गए, अब कैसे होगा। तो इन कामों में टाइम वेस्ट ना करें। इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स, सॉल्व अ लॉट ऑफ पेपर्स, रीड स्टैंडर्ड बुक्स, प्रायोरिटाइज योर टाइम विद किसमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको पढ़ते रहते हैं, या आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते रहते हैं। मैंने तो ये देखा, मैंने भी 8-10 बुक खरीद ली थी आर्ट एंड कल्चर की, बट पढ़ बिल्कुल नहीं पाया था क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो ये कर लोगे तो प्रीलिम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच इंटरव्यू, राइट। प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है, मेंस क्लियर हो जाती है, उसके बाद इंटरव्यू आता है, एवरीवन नोज, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, कि भाई इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इंटरव्यू में जो मार्क्स का वेरिएशन होता है वो 83 to 220 होता है, ठीक है। इस साल तो इतना ज़्यादा नहीं था, इस साल हाईएस्ट थे 209, और जो इनका सिलेक्शन हुआ उनमें शायद 115 लोएस्ट मार्क्स हैं। लास्ट ईयर इतना वेरिएशन था, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैड क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड मेंस, तो 137 मार्क्स, ठीक है। लास्ट रैंक पर जिसका सिलेक्शन हो रहा है, इससे अगर 136-7 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो तुम्हारी 30-40 कुछ रैंक आ जाती है, ठीक है। तो इस रैंक पर यू वुड बी आउट ऑफ द लिस्ट, इस नंबर पर यू वुड बिकम IAS, ठीक है। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉर्मली क्या है, हम इग्नोर कर देते हैं कि इंटरव्यू सब्जेक्टिव, इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, वी कैन नॉट चेंज अ पर्सनालिटी। जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होगी उनको तो पता ही होगा, ठीक है। बट पर्सनालिटी में हमारे बहुत सारे रफ एजेस होते हैं, एंड वी कैन स्मूदन दोज एजेस, वी कैन प्रेजेंट आवर बेस्ट सेल्फ टू द इंटरव्यू बोर्ड। तो बेसिकली जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, दैट स्टार्ट्स विद योर प्रीलिम्स रिजल्ट व्हेन यू फिल योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब नॉर्मली होता क्या है, जब DAF भरने का टाइम आता है तब प्रीलिम पास हुई होती है, तब लगता है यार बस मेंस पास हो जाए, इंटरव्यू को तो देख लेंगे, तो ध्यान से भरते नहीं है DAF, ठीक है। तो DAF को ध्यान से भरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर नहीं आता भरना तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, राइट। तो DAF में इंपॉर्टेंट होता है आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स,
पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या लीडरशिप, ठीक है, और सर्विसेज प्रेफरेंस जो आप देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी सर्विसेज प्रेफरेंस काफ़ी अनयूजुअल देते हैं। इंडियन डिफेंस अकाउंट को ऊपर प्रेफरेंस दे दिया, रेलवे अकाउंट को नीचे दे दिया। नॉर्मली पूछते नहीं है, बट कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इंडियन रेलवे अकाउंट को नीचे क्यों दे रखा है। बोल देगा सर मुझे तो अकाउंट्स पसंद नहीं है। कि बोलेगा भाई इंडियन डिफेंस अकाउंट्स को तुमने पांचों प्रेफरेंस दे रखा है, अकाउंट पसंद नहीं है, बताओ। तो थोड़ा मतलब लॉजिकल प्रेफरेंसेज होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बट दे शुड बी लॉजिकल, यू शुड नो समथिंग अबाउट दैट, राइट। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हॉबीज, इंटरेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द योर इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन दिस। समटाइम्स नो क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तब कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो हॉबी नहीं है कुछ भी, खाली छोड़ दूँ। अब खाली छोड़ना इज़ नॉट एडवाइजेबल, एक दो हॉबी क्रिएट कर लो। अब कुछ लोगों को लगता है कि बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी, तो जिन्होंने कभी जीवन में बुक नहीं पढ़ी होती वो भी भर देते हैं बुक रीडिंग, ठीक है। अब एग्जाम में ये तो नहीं बोल सकते क्या बुक पढ़ी है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है। तो उठा के सबसे पहली बुक ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं ऑलकेमिस्ट, और पहुंच जाएंगे इंटरव्यू हॉल में, क्या पढ़ा तुमने, सर ऑलकेमिस्ट पढ़ा। और कुछ पढ़ा नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव दैट हॉबी। तो मतलब बुक रीडिंग है तो 10-15 बुक तो पढ़ रखी हूँ, अच्छी है नहीं बस चेतन भगत पढ़ के पहुँच गए, ठीक है। फिर जैसे कई लड़कियाँ स्पेशली भरती हैं कुकिंग, तो लास्ट ईयर एक मॉक इंटरव्यू में एक लड़की मिली, कुकिंग हॉबी थी उसकी। मैंने पूछा क्या कुक करती हो, बोलती है मैगी, ठीक है। मैंने कहा मैं भी कुक कर लेता हूँ यार मैगी को, ठीक है। तो मेक श्योर ऐसा कुछ ना हो। अब कुकिंग में क्या करते हैं लड़कियां, भर देती हैं कुकिंग, कभी कुछ कुक किया नहीं, बोलती हैं गूगल पे पढ़ लूँगे, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन आता है कि मिठाई ये कुक करती हूँ मैं तो राजमा चावल, चलो मान लो राजमा चावल ही। तो इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं 5 लोगों के लिए राजमा चावल कुक करके बताओ मतलब कितना राजमा लोगे, कितना चावल लोगे। तो कुक नहीं किया तो पकड़े जाते हो, और अगर यहाँ पे पकड़े गए तुम झूठ बोलते हुए तो तुम्हारे 100 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट हियर। अब इधर कुछ हॉबीज़ होती हैं, डिबेटिंग, क्विजिंग, ठीक है। तो यू शुड फिल दीज हॉबीज ओनली इफ यू आर वेरी गुड इन दिस। तो जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्विजिंग हॉबी भर रखी थी, स्कूल में काफ़ी क्विज किया करते थे। तब एक बोर्ड मेंबर ऐसे फर्राटेदार 10 क्वेश्चन पूछने लगा, वेयर दिस रिवर, वेयर दिस सिटी। एक भी नहीं आता था मुझे, क्योंकि भाई ऐसी क्विज तो कभी की नहीं हमने। अब क्या बोले उसने बोला तुमने क्विजिंग भर रखी है, डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो इंटरव्यू मेरा बिगड़ गया था, ठीक है। डिबेटिंग में नॉर्मली तुमको टॉपिक दे दिया जाता है, तो दोज हु आर नॉट वेरी गुड एट डिबेटिंग, काफ़ी टाइम से डिबेट नहीं किया, दे शुड नॉट फिल डिबेटिंग एज हॉबी, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स होता है, तुमने भर दिया क्रिकेट पसंद है मुझे, या फुटबॉल पसंद है, या बैडमिंटन जैसे बहुत लोग भरते हैं। फिर मान लो इंडियन बैडमिंटन लीग के बारे में कुछ पूछ लिया, तो जवाब निकलता है सर मैं तो खेलता हूँ बैडमिंटन, देखता नहीं हूँ, ओके। सो दिस इज नो एक्सक्यूज, वट एवर यू फिल इन योर DAF यू शुड नो समथिंग अबाउट दीज थिंग्स। मतलब जो बहुत बेसिक थिंग्स है वो गलत नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट में लोगों को पता नहीं होता इन स्विंग और रिवर्स स्विंग में किस वे जो बॉल है वो स्विंग होती है, शाइनी साइड या दूसरी साइड, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे वर्क एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब कुछ लोगों के 4th 5th अटैम्प्ट होते हैं, कोई जॉब नहीं कर रखा, तो लोगों को लगता है यार कुछ भर देते हैं। तो जो इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं वो भर देते हैं IT जॉब, कुछ भी, दोस्त की कंपनी का नाम खुद भी भर देते हैं, ठीक है। तो अब फिर क्या होता है कि जब इंटरव्यू मेंस का रिजल्ट आ जाता है, उनको कुछ पता तो होता नहीं है क्या है जॉब में, तो वो दोस्त को कॉल लगाते रहते हैं यार क्या होता है तेरी कंपनी में, कैसे प्रमोशन होते हैं, क्या होता है। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू लाई इन योर DAF, क्योंकि इफ़ यू आर कॉट लाइंग यू वुड गेट वेरी वेरी लेस मार्क्स, तुमको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं देते हैं। तो अगर 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी डिफेंसिव अबाउट एनीथिंग। 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया, तो यू कैन एक्चुअली मेक द इंटरव्यू बोर्ड फील कि हाउ मच यू वैल्यू दिस जॉब, कि भाई तुम लगे हुए हो इसको पढ़ने में, राइट। कुछ लोग बोलते हैं ना इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट होता है, दैट यू शुड नॉट बी डिफेंसिव अबाउट योर सेल्फ, यू शुड नॉट फील बैड अबाउट योर सेल्फ, योर टास्क इज टू सेल योर सेल्फ वॉट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ। अगर मान लो लोगों को लगता है बहुत बेकार कॉलेज से आया हूँ एकदम, मैं तो 60% मेरे 12th में बने थे, जो मेरे शहर का सबसे बेकार कॉलेज था उससे इंजीनियरिंग कर ली। अब बैठे यहाँ पे लोग IIT से, एम्स से, मेडिकल कॉलेजेस से और
LSR से और SRCC से, तो भाई मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? बट इंटरव्यू इज द आर्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली अ सेल्समैन, तो योर सेल्स पिच इज इंपॉर्टेंट. तो कैन यू नॉट मेक देम फील हाउ मच हैव यू इम्प्रूव्ड? तो अगर तुम उनको ये फील करा दो कि भाई बहुत इम्प्रूव कर लिया है मैंने अपने आप को, तो दे वुड बी वेरी इम्प्रेस्ड. भाई पहले उनका तुम्हारा लो ओपिनियन होगा जब तुम्हारी प्रोफाइल देखेंगे, 60% ट्वेल्थ में, 50% 10th में, ग्रेजुएशन में भी 6 छक्का लगा हुआ है, ठीक है, कुछ किया भी नहीं, 4 साल से प्रिपेयर ही कर रहा है. बट अगर तुम उनको बता दो, मतलब बताना, अब ये नहीं बोलोगे कि सर मैं तो इतना चाहता हूँ इस जॉब को, तो वो तो मतलब यू वुड हैव टू मेक देम फील थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर जेस्चर्स, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू शुड नॉट बी डिफेंसिव, ओके, यू शुड कन्वे दैट यू वांट दिस जॉब, यू आर हम्बल, ओके. जैसा अब मैं एम्स से चला गया, राइट? अब मेरे बारे में उनका कुछ होगा, यार एम्स के लड़के काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, राइट? अब मैं उनके सामने जाकर सवाल पूछूं, मुझे कुछ नहीं मेडिकल के बारे में, है ना, तो उनको लगेगा यार ये एम्स में जाके कुछ नहीं किया इसने जीवन में, तो आगे क्या करेगा ये? मतलब ही हैज़ वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली लर्न समथिंग, राइट? और अब तुम मान लो बहुत बेकार कॉलेज से कोई बच्चा, लेकिन ही हैज़ एक्चुअली लर्न, राइट? तो इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम फील इन द इंटरव्यू, ठीक है? इसके अलावा इंटरव्यू में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और जैसे जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे साल JNU इशू चल रहा था, नेशनलिज्म डिबेट, या कुछ तो परमानेंट इशू होते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का इशू आ गया या मैरिटल रेप का इशू आ गया. अब जैसे मान लो मैरिटल रेप पे कुछ पूछ लिया तुमसे, राइट? भाई गवर्नमेंट इज डिथरिंग इन क्रिएटिंग ए लॉ ऑन मैरिटल रेप. अब यू हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगेंस्ट दिस थिंग. अब तुमसे पूछ लिया क्या है, तो योर ओपिनियन शुड नॉट बी वन साइडेड कि नहीं नहीं सरकार पागल है, सरकार इज एंटी वीमेन, एंटी माइनॉरिटी, या जो भी चीज़ें बोली जाती है ना, तो you can give any opinion. Yes sir, there should be a marital rape is rape, there should be a marital rape should be penalized, criminalized, whatever. But you should also present government side. भाई गवर्नमेंट भी तो कुछ सोच के लॉ नहीं बना रही है that marital rape can be misused, right? इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है या जो भी है, whatever. तो if you present both sides of the coin and then you give your opinion, तो उनको लगेगा कि भाई you are not a social activist. तो सोशल एक्टिविस्ट की तरह बिहेव नहीं करना होता इंटरव्यू बोर्ड में. सरकार को माइल्डली क्रिटिसाइज करना होता है, सजेस्टिंग ए वे फॉरवर्ड. यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इनडिस्क्रिमिनेटली कि भाई लैंड लॉ बना दिया लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर था. नहीं सर, ये तो सरकार गवर्नमेंट किसानों की ज़मीन लेके जा रही है. यू कैन नॉट से दैट. यू शुड से ठीक है भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरत है. जैसे यहाँ माओइज़म पे सवाल आ जाते हैं, तो नॉर्मली क्या द हिंदू पढ़ते हो या हर्षमंदर को पढ़ते हो माओइज़म पे, तो ये करते हैं कि भाई इंडियन आर्मी तो क्या नॉर्थ ईस्ट में करती है. माओइज़म में सरकार ने सारी ज़मीन हड़प ली ट्राइबल्स की. फॉरेस्ट राइट एक्ट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट. अभी भी नियमगिरी में भी उनकी ज़मीन ले रहे थे. बट यू शुड बी माइल्ड कि ओके वी हैव मेड सम मिस्टेक्स, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट, राइट? अगर ऐसा करोगे तो इंटरव्यू बोर्ड पे सही इंप्रेशन पड़ता है. जैसे मेरी बात बताता हूँ कि मेरे से जो आखिरी सवाल पूछा था, आई कम फ्रॉम सवाई माधोपुर, देयर इज रणथंबोर नेशनल पार्क, टाइगर्स. तो अभी डॉन टू डस्क सफारी की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी थी. तो मेरे से क्वेश्चन पूछा, विपिन यू कम फ्रॉम द टाइगर लैंड, रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी बट नॉट गुड फॉर द इकोलॉजी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो सब ये लिखा है, टूरिज्म इज फॉर इकोलॉजी नॉट फॉर इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने ये किया वो किया. तो बट यू शुड ऑल्सो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट. तो जैसे मैंने बोला कि सर गवर्नमेंट हैज टेकन एडिक्वेट सेफ गार्ड्स, ये वो, लेकिन फिर भी वो मेरे से बोलता नहीं नहीं तुम अपना ओपिनियन बताओ. मैं तो सोच रहा था बिना ओपिनियन नहीं निकल जाऊँ. बोले नहीं नहीं बताओ तुम अपना ओपिनियन. तो मैंने बोल दिया सर अब गवर्नमेंट ने ले लिया तो शुरू हो गया, 15 दिन हो गए इस स्टेप को लिए. तो let it be continued for 1 month, 2 months, then review it. If it's harming ecology, discontinue it. See how can we have a win-win situation. In interview, you should not think in terms of either or. जैसे
बड़ा आसान क्वेश्चन, आसान क्या मतलब फेमस और इनफेमस क्वेश्चन होता है कि यू हैव ए पर्सन टू अपॉइंट, ओके, देयर इज अ जॉब वैकेंसी एंड देयर आर टू पीपल, वन इज एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट बट डिसऑनेस्ट, ठीक है, द अदर इज वेरी ऑनेस्ट बट इज नॉट एफिशिएंट, हु वुड यू अपॉइंट? किसको अपॉइंट करोगे? एनीवन? हाँ, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड लेस एफिशिएंट, क्यों भाई? काम तो वो करेगा ही नहीं कुछ, जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। क्या एफिशिएंसी कैन बी और डिसऑनेस्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड? जो करप्ट है, वंस करप्ट ऑलवेज करप्ट, राइट? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है। इट्स एन एटीट्यूड एंड एफिशिएंसी इज नॉट एन एटीट्यूड। ओके ओके, और डेडलाइन कल की है काम को कंप्लीट करने की, फिर क्या करोगे? सो द पॉइंट इज, अब तुमको कुछ पता नहीं कौन सा काम करवाना है और तुमने जवाब दे दिया है, ठीक है? तो इंटरव्यू में क्या है, दिमाग खोल के काम करना चाहिए। अब मान लो कि फ्लड रिलीफ का काम चल रहा है, अभी इवैक्यूएट करना है तुमको तुरंत, आधे घंटे में इवैक्यूएट नहीं किया तो 1000 लोग मर जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे तुम? थोड़ा पैसा खा जाने दो यार उसको, 1000 लोगों को तो नहीं मरने दोगे ना। और प्लस द अदर, तो मतलब यू शुड नो क्या वर्क प्रोफाइल है। ये जरूरी नहीं है ना वो वाई वाज ही इंडल्जिंग इन करप्शन या डिसऑनेस्ट बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि इज वेरी करप्ट, देयर कुड बी सम रीजंस। वर्क प्रोफाइल क्या तुमको पता नहीं है। प्लस द जो स्टैंडर्ड आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन का, वो तो ये होता है कि सर 1 अरब की पॉपुलेशन है इंडिया की, तो मैं ढूंढ लूँगा तीसरा बंदा हु इज़ बोथ एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट। तो कुल मिला के जो व्हाट आई वांट टू से इज यू शुड हैव ओपन माइंड, ठीक है? और एक इंटरव्यू में तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, नेवर डिफेंसिव, ठीक है? स्टिक टू योर स्टैंड बट डोंट आर्ग्यू, ठीक है? तो यू शुड नेवर हर्ट देयर ईगो, ठीक है? अगर तुमने उनकी ईगो हर्ट कर दी, उसको बेकार लगेगा, वो तुमको कम मार्क्स देकर भेज देगा। तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं होती इंटरव्यू में। अगर कुछ गलत भी बात बोल रहा है वो तो मान लो। जैसे कुछ मेरे से मेडिकल का क्वेश्चन पूछा था, तो जो चेयरपर्सन थे उनको थोड़ा कम आता था उस इशू में मेरे से, तो वो गलत बता रहे थे, ठीक है मान लो। अब यहाँ मैं उनको समझाने थोड़ी लगूंगा सर कैसे पोलियो का इलाज होता है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है, उनको कम आता होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। मान लो तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, कुछ पूछने लगे, नहीं तुम बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। वो बोलेगा नहीं ऐसा होता है, भाई मान लो, ठीक है? तो बेसिकली तुमको, क्योंकि तुम तो चले जाओगे फिर मार्क्स उसको देने, बाद में तुम तो आर्ग्यू नहीं कर सकते मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, राइट? तो इन बातों को ध्यान रखना। तब फिर एक होता है ड्रेस, तो इंटरव्यू से पहले जो ड्रेस पहननी है वो पहन के देख लो। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, अब उसके पेरेंट्स लेकर आए उसके लिए सूट, अब 2 साल में तो मोटा हो गया, अब सूट ही फिट नहीं हो रहा, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है? प्लस जो भी नॉर्मल एटिक्वेट्स हैं वो तो तुमको ध्यान रखने होंगे। तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मॉक इंटरव्यूज़ दो, ठीक है? और मॉक इंटरव्यूज़ कई जगह पर दो, मतलब आई वुड सजेस्ट कि 3-4 मॉक इंटरव्यू तो देने ही चाहिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो कि भाई क्या पर्सनैलिटी में डिफेक्ट लगते हैं। जैसे अपने बारे में बताता हूँ, मैं काफ़ी जल्दी बोलता हूँ, स्पेशली इफ़ पुट अंडर प्रेशर आई स्टार्ट स्पीकिंग वेरी फास्ट, और जब स्टार्टिंग में बैठता हूँ तो आई अपीयर वेरी टाइट। तो मुझे हर कोई बोलता था। तो यू हैव टाइम, भाई मेंस के कितने दिन बाद होता है इंटरव्यू? कम से कम 3 महीने बाद। तो बहुत टाइम होता है कि यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स एंड यू रेक्टिफाई दैम, ठीक है? एक करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, ठीक है? अब ये नहीं मत बोलना, कई लोग क्या करते हैं मार्च में इंटरव्यू है, तुरंत इंटरव्यू आ गया, जनवरी का करंट अफेयर छोड़ के चले गए, फिर जनवरी का पूछ लिया तो फिर बोलते हैं ये क्या नाटक है, ठीक है? तो वो तो कुछ भी पूछेंगे, राइट? करंट अफेयर्स, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, और फाइनली जो भी तुम्हारा ऑप्शनल है, इनको प्रिपेयर वेल, गो देयर विथ कॉन्फिडेंस। बताओ उनको कि भाई दे शुड एक्चुअली लाइक यू। आफ्टर 30 minutes of your interview, if they like you, if they feel okay, we had a nice little chat of 30 minutes, they would award you very good marks. Okay, that's all. Thank you very much. Any questions you can ask in Q&A session.
हाँ मेरी हॉबीज़ फॉर रीडिंग बुक्स, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, प्लेइंग बैडमिंटन एंड फुटबॉल, ठीक है। नहीं, इफ डज नॉट मैटर प्लेइंग बैडमिंटन और प्लेइंग क्रिकेट। आई रोट प्लेइंग बैडमिंटन। नहीं, प्लेइंग बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन खेलते हो तो पता भी तो होना चाहिए ना कि लिंडन कौन है। अगर तुमको पता नहीं बैडमिंटन खेलते हो कि इंडिया के कितने लोग ओलंपिक में जा रहे हैं बैडमिंटन में, तो दैट वुड बी बैड। ऐसे बुक्स में तुमको मान लो तुमने बोल दिया, जैसे मेरे से इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर भी मेरी यही हॉबीज़ थी और मेरे से बुक्स पूछते ही जा रहे थे, राइट। मतलब जब 15 बुक्स हो गई तब मेरी और इंटरव्यूअर की बुक मैच की, फिर उस पर थोड़ा डिस्कशन चला, ठीक है। तो यू मतलब कुछ आना चाहिए, अब ये नहीं कि 5 बुक के बाद ब्लैंक हो जाओ कि नहीं बस 5 ही पढ़ी मैंने, है ना। मतलब हॉबी का मतलब तुम कम से कम 3-4 साल से तो परस्यू कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।